an underreported case for every young recruit at the police academy, this book will serve as a beacon of insight, encouragement, and perspective. The honesty with which Shri Gupta discusses the psychological toll of policing, the moral dilemmas, the administrative bottlenecks, and at the end, I would like to salute Shri Dinesh Kumar Gupta ji for not just writing this book, but for living the life that made it possible. It takes experience, integrity, and introspection, and a great deal of courage to write something so comprehensive and yet accessible. To our brave police personnel, this book, I believe, is a tribute to you. Your job is not easy, I know, but books like these remind us that behind every FIR, every investigation, every late night call, there are human beings with resolve and duty at their core. So even the fact that there is a trust deficit between the public and the police these days, I can understand the kind of trials and tribulations the police personnel go through, and we must give them our full kudos and help them in their duty and in their endeavors. The motto of the Indian Police Academy, Satya Seva Suraksha, itself. So much, ma'am. You have rightly pointed that Shri Dinesh Kumar Gupta ji has actually taken up the courage to write something really comprehensive. So we once again congratulate him for that. और कहा जाता है कि जो साहस है वो केवल नेत्रों में नहीं दिखाई देता, साहस शब्दों में भी दिखाई देता है, और श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी ने उस साहस को अपने लेखन में उतारा है. तो एक बार पुनः हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं. With this, I would like to invite on the podium now Honorable Member of Parliament Shri Manoj Tiwari ji for his address. Please put your hands together for him. ये पुस्तक पोलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया, इसका लोकार्पण हो चुका है. मैं इसमें भाग लेकर के अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि ये जो पल है जी, ठीक है क्या नहीं, आप आए, थैंक यू जी. दिनेश गुप्ता जी के साथ हमने अपने संसदीय क्षेत्र में भी काम किया. कई ऐसे पदों पे ये रहे जहां हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन था, और ये उन अधिकारियों में से हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह इनका डे बाय डे वर्किंग याद है. अगर हम आंख बंद करके भी सोचें तो दिनेश गुप्ता एक ऐसा अधिकारी जो कुछ बात कहने पे तुरंत उसका संदर्भ लेना है, मिनिमम टाइम में उसको कैसे एग्जीक्यूट करके देना है. अगर वो व्यक्ति पुलिसिंग ट्रेंड्स इन इंडिया, क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया पे लिख रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत विशेष है. और विशेष इस मामले में भी है कि हम लोग तो उपस्थित हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हर्ष जी उपस्थित हैं, सारे दोस्त हमारे बिंदु दारा सिंह जी भी आए हैं. आप बिंदु दारा सिंह जी को जानते ही होंगे, इनके पिताजी दारा सिंह थे, इसलिए बिंदु दारा सिंह लिखते हैं. बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं. और ये इसमें आप दुखी मत हो. तो मैं आई थिंक पिताजी से कभी कहानी कह नहीं पाया, लेकिन being a son, I'm a very proud son. Our family is very proud of who he has become, how he has shared the values with us, and I just envision my life and aspire that I can at least be some part of him, if not better. And जो उनका तजुर्बा है, I've learned a lot. I would love to take it forward to the next generations whenever I have. I'm 25 only, 25 साल का हूँ. तो but धन्यवाद everyone. And Papa, I think you're the best father I could ever ask for. And जहाँ भी दादा हो, जहाँ भी दादी हो, I think they would be the proudest mother and father also. Thank you so much. जय हिंद. ये किताब मेरे पिताजी ने एक किताब लिखी थी, मेरा मन था कि कुछ लिखूँगा. तो कुछ समय मुझे मिला, तो समय रेगन करने लगा.
तो मैंने पुलिसिंग की कैसे उत्पत्ति हुई थी, कैसे पुलिसिंग बड़ी, क्राइम पैटर्न कैसे बदला, ये मेरा प्रयास है कि मैंने कुछ चीज़ें अपने दिमाग की समाज के को समझना चाहिए क्या चीज़ है, वो मैं किताब में लिख सका। और यहाँ लोग जो आए उन्होंने सराहना की, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, मुझे करने के धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरे साथ किताब में मेरे जरिए में जुड़े थे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे मित्र, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लहर है, आशा है कि लोग उसको पढ़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी भी थ्रेशोल्ड पर आता है तो केवल और केवल एक फुल स्टॉप होता है, पुलिस विभाग। क्वेश्चन मार्क भी पुलिस पर ही खड़ा होता है और कहीं ना कहीं उसका जब निवारण की बात आती है तभी पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है। तो उसको कैसे ये किताब एड्रेस करती है, और जो नए पुलिस वाले जो आपकी 25 साल की जर्नी को देखेंगे तो उनके लिए क्या मैसेज है? ये मैसेज उनके लिए है कि आप जानिए कि चेंज इज नेचर ऑफ लॉ। हर चीज़ चेंज होगी, पुलिसिंग भी चेंज होगी, क्राइम पैटर्न भी चेंज होगा। हमको अपने आप को समाज के अनुसार बदलाव करना है, जिससे कि समाज के लिए इफेक्टिव हो सके, कि कैसे अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं और समाज को सक्षम कर सकते हैं, क्राइम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये हमारे उद्देश्य को पाने के लिए किताब एक छोटी सी मददगार है। ठीक है, वो समाज के लिए ही है, लोगों के लिए ही है। इसमें दंड और न्याय दोनों में फर्क है और आज की पुलिसिंग न्याय की तरफ आगे बढ़ रही है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान